Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain structure of different types of chlorophylls found in different photosynthetic organisms. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको पर्णहरित के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताऊंगा जो कि विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाए जाते हैं. So in this table, the different types of chlorophylls are shown and their differences are summarized. इस सारिणी में विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल और उनमें पाए जाने वाले अंतरों को प्रदर्शित किया गया है. क्लोरोफिल की संरचना के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. We have already discussed structure of chlorophyll A in an earlier presentation. To revise some of the important points of structure of chlorophyll A, we can study this figure again. Chlorophyll A की संरचना के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको एक बार हम पुनः दोहराने के लिए इस चित्र को यहाँ पर देख सकते हैं. क्लोरोफिल ए की संरचना में 4 पायरोल वलय पाए जाते हैं और इस संरचना को पोर्फायरिन हेड कहा जाता है. So there are 4 pyrrole rings present in porphyrin head of chlorophyll A. So these are first, second, third and fourth pyrrole rings. The carbon atoms in porphyrin head are numbered from pyrrole ring first. पोरफायरिन सिर में या पोरफायरिन हेड में जो कार्बन परमाणु है उनकी नंबरिंग प्रथम पायरोल वलय से प्रारंभ होती है. सो दीज कार्बन एटम्स आर नंबर्ड फ्रॉम पायरोल रिंग फर्स्ट. सो कार्बन एटम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड अप टू 20. So these are number of carbon atoms in 4 pyrrole rings present in porphyrin head. Then the external carbon atoms of all pyrrole rings are separately numbered as R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 and R8 respectively, which also we have discussed earlier in the structure of chlorophyll A. तो कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग के अलावा प्रत्येक पायरोल वलय के बाहर की ओर जो कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको अलग से R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 और R8 यह क्रमांक दिए जाते हैं या यह नंबर दिए जाते हैं. इसके बारे में भी हम विस्तार से पूर्व में बात कर चुके हैं जब मैंने आपको क्लोरोफिल ए की संरचना समझाई थी. So now we come to structure of chlorophyll A. To summarize its structure, we can say its molecular formula is C55H72O5 N4 magnesium. The different substituents present in chlorophyll A molecule are at carbon number 2, that is R1 position. Either it is carbon number 2 or R1 position, there is a methyl group. At carbon number 3, that is R2 group, that is carbon number 3 or R2 group, a vinyl group is present as a substituent. Then at carbon 7 or R3, that is this position, which can be called as either carbon 7 or R3 group, here methyl group is present as a substituent. And then at R4 position, that is carbon number 8 or R4 position, an ethyl group is present as substituents. So different types of chlorophylls have differences in position of substituents or type of substituents either at R1, R2, R3 or R4 position. Then at R7 position or carbon number 17, that is this place, this is R7 or carbon number 17. Here in chlorophyll A propionic acid residue is present, CH2, CH2, COO. This is propionic acid residue
and a phytyl tail or phytol tail is present attached to this propionic acid residue. The structure of chlorophyll A is described as chlorine structure, or it is a magnesium chlorine structure. This also I have discussed earlier in structure of chlorophyll A, that when at carbon number 17 and carbon number 18, when between these carbon 17 and carbon 18, when there is a single bond present, then this structure is known as magnesium chlorine. And when between carbon number 17 and carbon number 18 a double bond is present, then this structure is known as a porphyrin or phytoporphyrin. So this structure also I have discussed earlier in the structure of chlorophyll A. तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए की संरचना की बात करें तो जो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंट्स पाए जाते हैं वह कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, कार्बन नंबर 3 पर फिनाइल ग्रुप पाया जाता है, कार्बन नंबर 7 पर अगेन मिथाइल ग्रुप उपस्थित होता है और कार्बन नंबर 8 पर इथाइल ग्रुप उपस्थित होता है। इसी को हम R1, R2, R3 और R4 पोजीशन भी कह सकते हैं। R1 पोजीशन पे मिथाइल, R2 पर विनाइल ग्रुप, R3 पर अगेन मिथाइल ग्रुप और R4 पर इथाइल ग्रुप पाया जाता है। कार्बन नंबर 17 या R7 पोजीशन पर एक प्रोपियोनिक अम्ल उपस्थित होता है, प्रोपियोनिक अम्ल रेजिड्यू पाया जाता है और इस प्रोपियोनिक अम्ल रेजिड्यू के साथ फाइटोल श्रृंखला जुड़ी हुई होती है, फाइटोल टेल जुड़ी हुई होती है। क्लोरोफिल ए की यह जो संरचना है, इस संरचना को मैग्नीशियम क्लोरीन संरचना कहा जाता है। क्लोरीन संरचना के अंदर कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है या एकल बंध उपस्थित होता है, जबकि पोरफायरिन संरचना के अंदर या फाइटोपोरफायरिन संरचना के अंदर कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18 के बीच में एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो यह अंतर क्लोरीन संरचना और पोरफायरिन संरचना के बीच में मैं पहले भी आपको एक प्रस्तुतिकरण में बता चुका हूं, जिसमें मैंने क्लोरोफिल ए की संरचना के बारे में आपको विस्तार से बताया था। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। सो वी कैन सी ऑल दीज पोजिशंस हियर। कार्बन नंबर 2 मिथाइल ग्रुप, कार्बन नंबर 3 विनाइल ग्रुप, कार्बन नंबर 7 again methyl group, and carbon number 8 an ethyl group is present in structure of chlorophyll A. Now we come to structure of chlorophyll B. In chlorophyll B is almost similar to chlorophyll A in its structure. chlorophyll B और chlorophyll A की संरचना लगभग एक दूसरे के समान होती है। इन दोनों में केवल एक जो अंतर पाया जाता है वह कार्बन 7 या R3 ग्रुप पर पाया जाता है, दैट इज दिस पोजीशन R3 ग्रुप और कार्बन 7 which is shown in these two boxes. In chlorophyll A at this position, that is at carbon number 7 or R3 group, methyl group is present. This methyl group is replaced by a formyl group or aldehyde group in chlorophyll B. तो केवल एकमात्र अंतर जो क्लोरोफिल ए और बी में होता है वह केवल यह है कि कार्बन नंबर 7 या R3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप के स्थान पर क्लोरोफिल बी में एक फॉर्माइल समूह पाया जाता है या एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो इसी के आधार पर इसका अणुसूत्र भी परिवर्तित हो जाता है। यदि इन दोनों की हम तुलना करें तो कार्बन परमाणु की संख्या इन दोनों में समान है। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप की उपस्थिति के कारण 2 हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोफिल बी की तुलना में अधिक होंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्लोरोफिल बी में 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर H3 है, यहाँ पर सिंगल H है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर क्लोरोफिल बी में कम हो जाते हैं क्लोरोफिल ए की तुलना में। सो फॉर्मूला बिकम्स H70. क्लोरोफिल ए हैज 2 more hydrogen atoms, so H72. Chlorophyll B has 2 lesser hydrogen atoms, so it is H70. And then there will be 1 more oxygen atom in chlorophyll B. Chlorophyll B में एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक उपस्थित होता है क्लोरोफिल ए की तुलना में। तो क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 5 ही होती है, जबकि क्लोरोफिल बी में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6 हो जाती है। इन दोनों की अकरेंस की बात करें तो यह भी मैं पूर्व में वैसे बता चुका हूं। क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में यह वर्णक पाया जाता है जिनमें ऑक्सीजनिक
प्रकाश संश्लेषण होता है. It is universal photosynthetic pigment of all oxygenic photosynthetic organisms. Chlorophyll B is also present in most plants or most higher plants, that is bryophytes onwards, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. It is present together with chlorophyll A. इसके अलावा यह हरे शैवालों में भी क्लोरोफिल ए के साथ उपस्थित होता है. तो अधिकांश उच्च पादपों में अर्थात ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल पाया जाता है. इसके अलावा क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के साथ हरे शैवालों या ग्रीन एल्गे में भी उपस्थित होता है. Now we come to structure of chlorophyll C. In structure of chlorophyll C, there is no difference between chlorophyll A and chlorophyll C in position at R1, R2, R3 and R4 positions. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल C1 की संरचना R1, R2, R3 और R4 पोजीशन पर एक समान होती है, कोई अंतर नहीं पाया जाता. तो जो मुख्य अंतर क्लोरोफिल C1 और क्लोरोफिल ए में है वह कार्बन 17 पर या R7 ग्रुप पर है, अर्थात इस स्थान पर यह अंतर है. क्लोरोफिल ए में यहां पर प्रोपियोनिक अम्ल पाया जाता है जिसके साथ फाइटोल श्रृंखला जुड़ी होती है. क्लोरोफिल C1 में यहां पर प्रोपियोनिक अम्ल के स्थान पर प्रोपिनोइक अम्ल पाया जाता है. इन क्लोरोफिल C1 इंस्टेड ऑफ प्रोपियोनिक एसिड प्रोपिनोइक एसिड इज प्रेजेंट. तो दोनों में अंतर की यदि बात करें तो प्रोपियोनिक एसिड इज CH2CH2COO, whereas प्रोपिनोइक एसिड इज CH2CH2COO. अर्थात यहां पर दो हाइड्रोजन एटम क्लोरोफिल ए की तुलना में कम हो जाते हैं क्लोरोफिल C1 में. यहां पर CH2CH2 है जबकि यहां पर केवल CH है, अर्थात दो हाइड्रोजन परमाणु प्रोपिनोइक एसिड में तुलनात्मक रूप से कम होते हैं प्रोपियोनिक अम्ल की तुलना में. तो एक अंतर तो यह हुआ, प्रोपियोनिक एसिड के स्थान पर यहां पर प्रोपिनोइक अम्ल पाया जाता है क्लोरोफिल C1 में. और दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये कि क्लोरोफिल C1 में फाइटोल श्रृंखला अनुपस्थित होती है. फाइटोल श्रृंखला या फाइटोल टेल जो पाई जाती है क्लोरोफिल ए और बी दोनों में उपस्थित होती है, लेकिन यह फाइटोल श्रृंखला क्लोरोफिल C1 में अनुपस्थित होती है. फाइटोल टेल के अणुसूत्र के बारे में भी हम पूर्व में बात कर चुके हैं. इट इज C29H39OH. अर्थात फाइटोल श्रृंखला यदि अनुपस्थित है तो कुल 20 कार्बन परमाणु और 40 हाइड्रोजन परमाणु तुलनात्मक रूप से इसमें कम हो जाते हैं. तो क्लोरोफिल ए में कार्बन परमाणु की संख्या होती है 55, तो 20 कार्बन परमाणु कम हो जाने के कारण जो कि फाइटोल श्रृंखला में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल सी का अणुसूत्र हो जाता है C35. इसी के साथ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की बात करें तो 40 हाइड्रोजन परमाणु फाइटोल श्रृंखला में उपस्थित होते हैं. तो चूंकि यहां पर फाइटोल श्रृंखला अनुपस्थित है तो यह 40 हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएंगे क्लोरोफिल C1 की संरचना में. तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 72 से घटकर 40 यदि कम करें तो हो जाएगी 32. लेकिन इसके अलावा दो हाइड्रोजन परमाणु प्रोपिनोइक अम्ल की संरचना में भी कम होते हैं, जिसके बारे में अभी पूर्व में हम बात कर चुके हैं. क्लोरोफिल ए में CH2CH2CO होता है जबकि यहां पर CHCHCO है, अर्थात दो हाइड्रोजन परमाणु प्रोपिनोइक अम्ल में भी कम पाए जाते हैं. तो 40 तो फाइटोल श्रृंखला के और 2 प्रोपिनोइक अम्ल में कम होने कारण कुल हाइड्रोजन परमाणु जो यहां पर कम हो जाते हैं वह 42 हो जाते हैं. सो 72 minus 42, that is remaining hydrogen atom or number of remaining hydrogen atoms is 30. Then remaining structure of chlorophyll A is same, O5 and 4 magnesium. So due to absence of phytol tail and presence of propanoic acid instead of propionic acid, the number of carbon atoms in chlorophyll C1 becomes 35 and number of hydrogen atoms become 30. So this is the structure of chlorophyll C1. Then another difference which I have already discussed is presence of structure porphyrin structure in chlorophyll C1. जो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है जिसके बारे में वैसे मैं पूर्व में बता चुका हूं कि क्लोरोफिल C के अंदर मैग्नीशियम क्लोरीन स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, क्लोरीन स्ट्रक्चर नहीं होता है बल्कि पोरफायरिन स्ट्रक्चर होता है. अर्थात कार्बन नंबर 17 और 18 के बीच में यहाँ पर
एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए में यहाँ सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, इस स्थान पर सिंगल बॉन्ड होता है। क्लोरोफिल C1 की संरचना में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, और जब डबल बॉन्ड उपस्थित होता है इस स्थान पर तो इस संरचना को पोरफायरिन या फाइटोपोरफायरिन कहा जाता है। क्लोरोफिल C अनेक शैवालों में पाया जाता है, मुख्य रूप से भूरे शैवालों में और डायटम्स में यह क्लोरोफिल C1 उपस्थित होता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल C2। क्लोरोफिल C2 की संरचना क्लोरोफिल C1 के लगभग समान ही है। एकमात्र अंतर जो इनमें पाया जाता है वह कार्बन नंबर 8 या R4 पोजीशन पर पाया जाता है। क्लोरोफिल C1 में R4 पोजीशन पर या कार्बन नंबर 8 पर अर्थात इस स्थान पर इथाइल ग्रुप पाया जाता है CH2CH3, जबकि क्लोरोफिल C2 में इस स्थान पर विनाइल ग्रुप पाया जाता है। शेष संरचना क्लोरोफिल C1 और C2 की समान होती है। तो इस अंतर के कारण जो अंतर आएगा वह केवल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में आएगा। यहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 5 थी इथाइल ग्रुप के अंदर, जबकि विनाइल ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। अर्थात क्लोरोफिल C2 में क्लोरोफिल C1 की तुलना में 2 हाइड्रोजन परमाणु और कम हो जाएंगे। तो यहां पर जो हाइड्रोजन परमाणु 30 थे C1 में, उसके स्थान पर क्लोरोफिल C2 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 28 हो जाती है। शेष संरचना समान होने के कारण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम परमाणु की संख्या क्लोरोफिल C1 और C2 में दोनों में समान रहती है। यहां पर भी प्रोपिनोइक एसिड ही पाया जाता है, फाइटोल श्रृंखला अनुपस्थित होती है और स्ट्रक्चर पोरफायरिन के रूप में पाया जाता है, अर्थात कार्बन 17 और 18 के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल D. Chlorophyll D is completely similar to chlorophyll A except at R2 पोजीशन और कार्बन नंबर 3 पोजीशन। क्लोरोफिल D की संरचना क्लोरोफिल A के समान ही होती है। एकमात्र अंतर जो पाया जाता है वह कार्बन नंबर 3 पर या R2 समूह पर, यानी इस स्थान पर पाया जाता है। तो इस स्थान पर जहां क्लोरोफिल A में विनाइल ग्रुप उपस्थित होता है, इस विनाइल ग्रुप के स्थान पर क्लोरोफिल D में इस स्थान पर फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है या एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, CHO ग्रुप पाया जाता है। इन दोनों की भी संरचना की यदि हम तुलना करें तो कार्बन परमाणु क्लोरोफिल D में एक कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन पाए जाते हैं जबकि यहां पर एक ही कार्बन है। तो क्लोरोफिल A की तुलना में एक कार्बन कम, अर्थात C55 के स्थान पर कार्बन परमाणु की संख्या 54 हो जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की बात करें तो क्लोरोफिल A में इस समूह में 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जबकि यहां पर एक ही है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु भी क्लोरोफिल D में 2 कम हो जाएंगे। तो H72 के स्थान पर H70 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन परमाणु यहां पर अतिरिक्त आ जाता है। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहां पर 5 के स्थान पर 6 हो जाएगी। सो क्लोरोफिल D का अणुसूत्र हो जाएगा C54H70O6N4 मैग्नीशियम। बाकी शेष संरचना जो है क्लोरोफिल D की वह पूर्णतः क्लोरोफिल A के समान होती है। केवल R2 ग्रुप पर या कार्बन नंबर 3 पर फॉर्माइल समूह या एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। क्लोरोफिल D मुख्य रूप से लाल शैवालों में पाया जाता है और कुछ नील हरित शैवालों में भी क्लोरोफिल D की उपस्थिति देखी गई है। Then structure of chlorophyll F. This is also similar to chlorophyll A. यह भी क्लोरोफिल A के समान ही संरचना इसकी होती है। अंतर केवल होता है कार्बन नंबर 2 पर या R1 पोजीशन पर, अर्थात इस स्थान पर। इस स्थान पर यदि हम देखें तो क्लोरोफिल A में एक मेथाइल ग्रुप उपस्थित होता है। क्लोरोफिल F में इस मेथाइल ग्रुप के स्थान पर फॉर्माइल ग्रुप यानी CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। तो यह एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों संरचनाओं की हम तुलना करें तो अणुसूत्र के आधार पर क्लोरोफिल D और क्लोरोफिल F संरचना में एक समान ही होंगे। दोनों केवल एक कार्बन परमाणु जो है वो क्लोरोफिल F में क्लोरोफिल D की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप ने रिप्लेस किया है। तो दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, तो इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही रहेगी जो क्लोरोफिल A में रहती है। तो C55H70O6N4 मैग्नीशियम यह क्लोरोफिल F का अणुसूत्र होगा। क्लोरोफिल F साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवालों में खोजा गया है और इसमें भी जो संरचना पाई जाती है वो क्लोरीन संरचना ही पाई जाती है।
तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो क्लोरोफिल सी अन्य क्लोरोफिल से थोड़ा अलग है, क्लोरोफिल C1 और C2, जिसमें एक मुख्य अंतर फाइटोल श्रृंखला की अनुपस्थिति होती है और प्रोपियोनिक अम्ल के स्थान पर प्रोपिनोइक अम्ल उपस्थित होता है। शेष क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और डी और एफ की यदि हम बात करें तो वह एक दूसरे से केवल एक फॉर्माइल समूह की उपस्थिति में भिन्न होते हैं। यानी क्लोरोफिल ए से क्लोरोफिल बी, डी और एफ केवल एक फॉर्माइल समूह की उपस्थिति में अलग होते हैं। क्लोरोफिल बी, डी एंड एफ डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल ए इन हैविंग ए फॉर्माइल ग्रुप इन प्लेस ऑफ सम अदर ग्रुप इन क्लोरोफिल ए। तो यदि इस सारणी में हम देखें तो इसकी तुलना की गई है। क्लोरोफिल ए में R1 पर CH3, R2 पर विनाइल, R3 पर मिथाइल और R4 पर इथाइल ग्रुप पाया जाता है। क्लोरोफिल बी में भी यही संरचना पाई जाती है, एकमात्र अंतर होता है R3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप के स्थान पर फॉर्माइल ग्रुप या एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। शेष संरचना क्लोरोफिल ए के समान होगी। क्लोरोफिल डी की बात करें तो इसकी संरचना भी क्लोरोफिल ए के समान ही होती है, अंतर केवल R2 पे होता है, जहां पर विनाइल ग्रुप के स्थान पर क्लोरोफिल ए में तो विनाइल ग्रुप पाया जाता है, क्लोरोफिल डी में इसके स्थान पर फॉर्माइल समूह या एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और इसी प्रकार से क्लोरोफिल एफ की संरचना भी क्लोरोफिल ए की संरचना के समान होती है, अंतर केवल R1 पोजीशन पे होता है या कार्बन नंबर 2 पर। तो क्लोरोफिल ए में इस स्थान पर मिथाइल समूह पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल एफ में इस स्थान पर फॉर्माइल या एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो क्लोरोफिल बी, डी और एफ क्लोरोफिल ए से केवल एक फॉर्माइल समूह की उपस्थिति में भिन्न होते हैं, जो अलग अलग पोजीशन पर क्लोरोफिल डी, बी और एफ में उपस्थित होता है। तो यही सारे अंतर जो अभी पूर्व में हमने बात की थी वह इस स्लाइड में पुनः एक बार सारांश रूप में बताए गए हैं। तो क्लोरोफिल ए कंटेन्स ए मिथाइल कंस्टिट्यूएंट at carbon number 7, that is R3 position in its structure, which is replaced by aldehyde group in chlorophyll B। अर्थात क्लोरोफिल B में R3 पोजीशन पर या कार्बन नंबर 7 पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जबकि इस स्थान पर क्लोरोफिल A में मिथाइल समूह उपस्थित होता है। As compared to other forms of chlorophylls, which are magnesium chlorines, that is chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll D and chlorophyll F, these are magnesium chlorines where a single bond is present between carbon number 17 and 18। क्लोरोफिल C is a magnesium phytoporphyrin, जबकि क्लोरोफिल C जो होता है जिसमें दोनों ही शामिल है, क्लोरोफिल C1 और C2, यह मैग्नीशियम फाइटोपोरफायरिन कहलाता है। इनमें कार्बन नंबर 17 और 18 के बीच में एक द्विबंध या डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। साथ ही एक जो और अंतर क्लोरोफिल C में पाया जाता है, जो हमने पूर्व में देखा था, एट द कार्बन नंबर 17 और R7 position, chlorophyll C contains propanoic acid, which is a trans-acrylic acid that replaces the propionic acid side chain with attached phytol। अर्थात क्लोरोफिल C में प्रोपियोनिक एसिड के स्थान पर प्रोपिनोइक एसिड उपस्थित होता है और साथ ही प्रोपियोनिक अम्ल से जो फाइटोल श्रृंखला जुड़ी हुई होती है वह भी क्लोरोफिल C में अनुपस्थित होती है। यानी प्रोपियोनिक एसिड भी नहीं पाया जाता और फाइटोल श्रृंखला भी नहीं पाई जाती क्लोरोफिल C में। इन दोनों के स्थान पर वहां केवल प्रोपिनोइक अम्ल उपस्थित होता है। इन इट्स नेचुरल स्टेट क्लोरोफिल C हैज ब्राउनिश गोल्डन कलर। प्राकृतिक परिस्थिति में क्लोरोफिल C का जो रंग है वह भूरा सुनहरा होता है। क्लोरोफिल D, B और F के बारे में पूर्व में बात कर ही चुके हैं। तो क्लोरोफिल D हैज फॉर्माइल ग्रुप इन प्लेस ऑफ विनाइल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 और R2 पोजीशन कंपेयर टू क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A से यदि क्लोरोफिल D की तुलना करें तो क्लोरोफिल D में कार्बन नंबर 3 या R2 पोजीशन पर एक फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल A में इस स्थान पर एक मिथाइल समूह उपस्थित होता है। इस प्रकार से क्लोरोफिल F की यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल F को हम कह सकते हैं इट इज 2 फॉर्माइल क्लोरोफिल A। अर्थात इसमें क्लोरोफिल A में जो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप होता है वह रिप्लेस हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप से या फॉर्माइल ग्रुप से। क्लोरोफिल F is most recently discovered chlorophyll, discovered only in 2010। क्लोरोफिल A सबसे अंत में खोजा गया क्लोरोफिल
है जो 2010 में खोजा गया है. It has been discovered in 2010. It has been discovered in cyanobacteria and other oxygenic microorganisms that form stromatolites. इसकी खोज नील हरित शैवालों में, साइनोबैक्टीरिया में और कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों में की गई है जिनमें ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है जो स्ट्रोमेटोलाइट्स का निर्माण करते हैं. स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉसिल्स हैं या जीवाश्म हैं जो कि समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और यह साइनोबैक्टीरिया के द्वारा निर्मित होते हैं. इनमें लाइमस्टोन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है. तो क्लोरोफिल एफ की खोज वस्तुतः इन स्ट्रोमेटोलाइट्स में फॉसिल फॉर्म में जो नील हरित शैवाल पाए जाते हैं उनमें से की गई है. So chlorophyll F is actually discovered from these fossil deposits which are formed by cyanobacteria, and chlorophyll F is discovered from these fossil deposits. Its molecular formula is C55F70O6N4 magnesium, which we have already discussed, and the structure is 2-formyl chlorophyll A. That is, at carbon number 2 or R1 position, formyl group is present in chlorophyll F. Its structure has been deduced by NMR optical and mass spectra. इसकी संरचना के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वह NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से और ऑप्टिकल तथा मास स्पेक्ट्रा अध्ययन के द्वारा की गई है. तो to summarize we can say chlorophyll B, chlorophyll D and chlorophyll F differ from chlorophyll A only in having a formyl group in place of a methyl group at carbon at R3 position in chlorophyll A, chlorophyll B, sorry. तो chlorophyll B में R3 पोजीशन पर methyl ग्रुप के स्थान पर फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है. chlorophyll D में R2 पोजीशन पर विनाइल ग्रुप के स्थान पर फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है और chlorophyll F में R1 पोजीशन पर methyl ग्रुप के स्थान पर फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है. तो यह अंतर क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, D और क्लोरोफिल F के अंदर है जो हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं. The chlorophyls are soluble in a number of organic solvents, but chlorophyll A is more soluble in petroleum ether, while chlorophyll B is more soluble in methyl alcohol. क्लोरोफिल, सभी प्रकार के क्लोरोफिल जो है वह अनेक प्रकार के कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल A पेट्रोलियम ईथर में अधिक घुलनशीलता प्रदर्शित करता है, जबकि क्लोरोफिल B मेथाइल अल्कोहल में अधिक घुलनशीलता प्रदर्शित करता है. अंत में कुछ बात बैक्टीरियो क्लोरोफिल की संरचना के बारे में भी कर लेते हैं जो जीवाणुओं में पाए जाते हैं. सो इन द एंड वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल्स एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल. बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स आर ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स. बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी अनेक प्रकार के होते हैं और क्लोरोफिल के प्रकार ही क्लोरोफिल की भांति ही इनको भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, B, C, D, E, F आदि नाम दिए गए हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल A की. It differs from chlorophyll A in having an acetyl group in place of vinyl group of chlorophyll A. In this figure, this is structure of chlorophyll A. This is structure of bacterio chlorophyll A. So major difference between chlorophyll A and bacterio chlorophyll A is that in chlorophyll A, at this position, that is R2 position, vinyl group is present. In bacterio chlorophyll A, at this R2 position, in place of vinyl group, an acetyl group is present. So this is one difference between chlorophyll A and bacterio chlorophyll A. In chlorophyll A, vinyl group is present at R2 position, whereas in bacterio chlorophyll A, acetyl group is present at R2 position. Then another difference between bacterio chlorophyll A and chlorophyll A is saturation of one double bond of porphyrin ring of chlorophyll A, which in turn adds 2 additional hydrogen atoms to bacterio chlorophyll, and therefore formula of bacterio chlorophyll A becomes C55H74O6N4 magnesium. That is, 2 additional hydrogen atoms are present. Instead of 72 hydrogen atoms, bacterio chlorophyll A has 74 hydrogen atoms, and this is because of this change in pyrrole ring 2, that is pyrrole ring B. In chlorophyll A, here methyl group is present, here also methyl group is present, and in chlorophyll A, here ethyl group is present, here also ethyl group is present. The difference between chlorophyll A and bacterio chlorophyll is presence of 2 additional hydrogen atoms, this hydrogen atom and this hydrogen atom in bacterio chlorophyll A.
तो इस स्थान पर जो अंतर है वह 2 अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति के रूप में है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए में R3 पोजीशन पर भी एक अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है और R4 पोजीशन पर भी एक अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, अर्थात 2 हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोफिल ए की तुलना में अधिक होते हैं। और इस कारण से जो क्लोरोफिल ए में R3 और R4 के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो यहां पर सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह जो डबल बॉन्ड होता है वह सैचुरेट हो जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए के अंदर। सो एंड ड्यू टू दिस सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 additional hydrogen atoms are present in bacterio chlorophyll A and hence number of hydrogen atoms become H74. So these are two differences between bacterio chlorophyll A and chlorophyll A. So we can see this difference in this structure also here. Here it is, instead of vinyl group, acetyl group is present here. Here instead of 2 additional hydrogen atoms, 1 hydrogen atom at this place and 1 hydrogen atom is present at this place. Remaining structure is same. This is CH2, CH3 here also, and it is CH3 group is present here also. And this is a phytol tail. So this is the structure of bacterio chlorophyll A. This is same structure which is shown in here also. Then bacterio chlorophyll B, it is similar to bacterio chlorophyll A. Bacterio chlorophyll B संरचना में bacterio chlorophyll A के समान ही होता है, केवल एक अंतर जो यहाँ पर पाया जाता है वो इस संरचना में है, यानी R4 पोजीशन पर। R4 पोजीशन पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल में एक हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप पाया जाता है इस स्थान पर, जबकि बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी में अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं पाया जाता बल्कि इसके स्थान पर विनाइल ग्रुप CH2 संरचना यहाँ पर पाई जाती है। तो CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप यहाँ पर नहीं पाया जाता बल्कि यहाँ पर CH2 संरचना इस स्थान पर पाई जाती है। तो केवल R4 पोजीशन पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी जो है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए से भिन्न होता है। शेष संरचना बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी की बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए के समान ही होती है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी को बैक्टीरियो पुरपुरिन भी कहा जाता है। दोनों में ही फाइटल टेल उपस्थित होती है या फाइटोल श्रृंखला उपस्थित होती है। Now we come to structure of bacterio chlorophyll C and bacterio chlorophyll D. इन दोनों को क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहा जाता है या इनको बैक्टीरियो विरिडिन भी कहा जाता है। सबसे मुख्य अंतर जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल C और बैक्टीरियो क्लोरोफिल A में है वह कार्बन नंबर 17 पर जो प्रोपियोनिक अम्ल के साथ फाइटोल श्रृंखला पाई जाती है उसके स्थान पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी में या क्लोरोबियम क्लोरोफिल में फार्नेसाइल टेल पाई जाती है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए में फाइटाइल टेल यानी फाइटोल श्रृंखला पाई जाती है, जबकि यहाँ पर फाइटोल श्रृंखला अनुपस्थित होती है, उसके स्थान पर फार्नेसाइल टेल उपस्थित होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फार्नेसाइल इज C15H25OH, जबकि फाइटोल के बारे में हम बात पूर्व में कर चुके हैं। फाइटोल का जो अणुसूत्र होता है वह C20H39OH होता है, अर्थात वहां पर कार्बन परमाणु की संख्या 20 होती है, यानी फाइटोल जो है वो एक डाइटरपीन होता है जो 4 आइसोप्रीन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जबकि फार्नेसाइल टेल जो है या फार्नेसाइल एल्कोहल जो है वह एक सेस्क्विटरपीन होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 15 ही होती है और जो 3 आइसोप्रीन इकाइयों से मिलकर बनता है। सो बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी में या क्लोरोबियम क्लोरोफिल में फाइटोल श्रृंखला के स्थान पर फार्नेसाइल टेल उपस्थित होती है। इस टेल के और फाइटाइल टेल के सैचुरेशन में भी अंतर होता है। फाइटोल श्रृंखला के अंदर या फाइटाइल श्रृंखला के अंदर केवल एक ही अनसैचुरेशन पॉइंट होता है, अर्थात एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि फार्नेसाइल टेल के अंदर 3 पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन पाए जाते हैं, 3 असंतृप्तता के बिंदु पाए जाते हैं, अर्थात 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जैसा कि यहां चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए में एक मुख्य अंतर तो होगा फाइटाइल श्रृंखला के स्थान पर फार्नेसाइल श्रृंखला की उपस्थिति, जिसमें इस श्रृंखला की लंबाई फाइटाइल श्रृंखला की तुलना में छोटी होती है।
फाइटाइल श्रृंखला का सूत्र होता है C20H39OH, जबकि फार्नेसाइल श्रृंखला होती है C15H25OH। तो न केवल कार्बन परमाणु बल्कि हाइड्रोजन परमाणु भी फार्नेसाइल श्रृंखला में तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। फाइटोल श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 39 होती है, जबकि फार्नेसाइल के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 25 ही होती है, यानी 14 हाइड्रोजन परमाणु भी इसमें तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दूसरा अंतर जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी के बीच में है वह इस साइक्लोपेंटेनॉन रिंग में है, फिफ्थ रिंग, जिसके बारे में भी हमने पूर्व में बात की थी कि क्लोरोफिल ए में एक 5वां वलय और पाया जाता है पायरोल वलय के अलावा, जिसे साइक्लोपेंटेनॉन वलय कहा जाता है। इस वलय में क्लोरोफिल ए में यदि हम देखें तो CH3OOC यह संरचना और 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी में यह CH3OOC संरचना और 2 हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं। अर्थात यह संरचना CH3OOC और 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर भी बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए की तुलना में बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी में कम होते हैं। तो 2 अंतर पाए जाएंगे। एक अंतर तो यहाँ CH3OOC का नहीं पाया जाना और 2 हाइड्रोजन परमाणु का नहीं पाया जाना, और दूसरा अंतर प्रोपियोनिक अम्ल से फाइटोल श्रृंखला के स्थान पर फार्नेसाइल श्रृंखला का जुड़ा हुआ होना। इसी प्रकार से बैक्टीरियोक्लोरोफिल डी की बात करें, जिसे भी क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहा जाता है, यह भी बैक्टीरियोविरिडिन की श्रेणी में ही आता है। इसके की संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना लगभग बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी के समान ही है, अर्थात इसमें भी यहाँ पर साइक्लोपेंटेनॉन रिंग में CH3OOC नहीं पाया जाता और 2 हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते। साथ ही साथ इसमें भी फाइटोल श्रृंखला नहीं पाई जाती, उसके स्थान पर फार्नेसाइल टेल पाई जाती है। और एक अंतर जो यहाँ पे पाया जाता है वो R5 पोजीशन पे पाया जाता है। बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी में R5 पोजीशन पर CH3 ग्रुप यहाँ पर उपस्थित होता है केवल, जबकि यहाँ पर CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप पाया जाता है। तो इन दोनों में बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी और डी में जो एकमात्र अंतर होगा वो R5 पोजीशन पर होगा। बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी में R5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, जबकि बैक्टीरियोक्लोरोफिल डी में R5 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप CH2CH3 ग्रुप पाया जाता है। So these are some differences in different types of bacteriochlorophylls. In next presentation, I will explain you biosynthesis of chlorophyll. तो इस प्रस्तुतिकरण में हमने क्लोरोफिल और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियोक्लोरोफिल के बीच में जो अंतर पाए जाते हैं उनके बारे में बात की। अगले प्रस्तुतिकरण में मैं पर्णहरित के जैव संश्लेषण के बारे में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।